हमारे दोस्त यहीं पर रहेंगे अपने मटकों के साथ, आई एम अज्यूमिंग. हाय, लव इट. बहुत ही. Can I take a moment and say that was absolutely glorious? Can we give it up for Matka King, guys? I have never had so much fun on stage introducing someone. That was बहुत मजा आ गया. मुबारक हो. Thank you. That was awesome. अब मैं क्या ही सवाल पूछूं? इतना ज्यादा अपस्टेज हो गई हूं मैं, तो ठीक है पूछ ही लेती हूँ. सुनेंगे सर का जवाब? ब्रिज भट्टी. What a character. What a guy. What is the most fascinating, most interesting thing you found about this character, Vijay? नमस्कार सब लोग. मेरे कैरेक्टर इस शो पे बोलता है कि मुझे ना ज़्यादा जीतना है ना ज़्यादा हारना है, बस खेलते रहना है. यही फिलॉसफी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, द इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, आई वुड से द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट वाज इट वाज अ इनक्रेडिबल रैग्स टू रिचेस स्टोरी. एक आदमी जो जिसके पास कुछ नहीं था उसने बहुत कुछ कमाया, और सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि उसने बहुत ईमानदारी से कमाया. It is just the perfect timing right now. Two gully boys, two Hamzas, very different sort of Hamzas ruling. One ruling the theaters, one probably definitely set to rule with Matka King. I think there is, there's just, consistent connection which has now become recurring. तो कुछ लोग coincidence बोल सकते हैं, कुछ लोग connection बोल सकते हैं. I just want to know what is just going on and what is your take on it in general. I think you're referring to Hamza, which Yes, of course. Ranveer played Singh in in Dhurandhar, Dhurandhar. and I played in Darlings. Correct. It's just a coincidence and an interesting piece of movie trivia now. Yeah. But yeah, Gully Boy was a significant moment in my life. I remember I was down in the dumps when that film happened to me. It saved me. It gave me a career. So I'm very thankful to do that film. And with Ranveer, he was one of the finest co-actors I've worked with, and with Hamza, he's hit it out of the park. So I would just say that when life throws a Hamza at you, make it like a Dhurandhar Hamza and not like a Darlings Hamza. For sure. Thank you so much. Absolutely. And I'll just move further to Sai. Sai, there is one thing which has been another constant. Over the years, women have always tried to get better roles, and now in the past few years, it finally seems to be much more a reality as opposed to just conversations consistently just going on here and there, right? What I want to know from you is, though, there is another conversation that's almost persistent, is the fact that there is always a bifurcation when it comes to what are the kind of actors, right? There are regional actors as they are tagged, there are whatever, there is like so many tags thrown around. I think you are probably the only example that has blurred those lines, considering the kind of amount of projects and the type of projects you've been. I want to know what has changed. What do you think? Are you just fortunate enough that these kind of characters keep coming to you? Or is it an actual conscious change that you see happening, not just for you, for Kritika, all these wonderful actresses out there? Listen, I've worked very hard to be here. And of course, fortune, yes, people who work hard, unke saath fortune to hota hi hai. I'm very happy that you said ki you seem to have blurred the lines. All of us are trying to push this envelope, and I think language should not define your existence. मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा है, एक्टर है, तो उसको बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है, और अब ज़माना बदल चुका है. सो आई थिंक जहाँ जितने सारे मीडिया दोस्त हमारे बैठे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि recognize our work as an actor, not geographic specifics, don't box us, and everybody, for that matter, इसमें भरत सर भी है, गिरीश सर है, सिद्धार्थ है. So I think all of us are trying to push the envelope, and I'm very happy. I really like people who rise and take their mates along, and I think that's what Nagraj sir has done here, and we are deeply thankful to him. And obviously all the producers, because this is a fun character. I've had a lovely time playing Barkha. And thank you for your question. Thank you, Kunal. And I hope the mic is with somebody else already. Hi. Can you hear me? Yeah. Yes, we can. So many congratulations for Triple Entertainment. And my question is for Siddharth. Hi, Siddharth.
This is Chetna Singh, right here. There are Yeah. two Siddharths here. So, this Siddharth? Yeah, of course. SRK. So was it difficult to recreate 1960s, and what was the most challenging part for you? Well, I mean, when you're doing any period piece, of course, you have to be really specific to the time. And I mean, but that detailing, of course, Nagaraj ji has done so beautifully along with his entire team. I think he was very clear from the start that he wanted this to feel authentic, to feel real. And I think the effort that he's put in to make sure that that happens with the entire crew was wonderful. So all the credit would go to him for that. विजय, आपसे मेरा एक सवाल है. आपका जो कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हैं, क्या ये किसी रियल लाइफ मटका किंग से इंस्पायर है? I mean, बहुत सारे लोग उस ज़माने में इस खेल को खेलते थे और कुछ लोग चलाते थे. तो इन सब की कहानियों को इकट्ठा किया है. यहाँ पर आशीष आर्यन यहाँ पर है नहीं. वो 10 साल से इस कहानी को चेस कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल से उन्होंने खेला भी है थोड़ा बहुत. वो रेस कोर्स और मटका के ठेकों पे जाके उन्होंने इसको 10 साल से स्टडी किया है और अपने जितने भी रिसर्च है उसको एक कहानी का रूप दिया है अभय के साथ मिलके, और जिसको नागराज सर और अभय ने मिलके हम सबको समझाया है. और इनके साथ काम करना मेरा एक सपना था. इनके साथ इनकी फिल्मों में जब देखता हूँ मुझे लगता था कि मैं ताजुब में था कि मुझे क्यों लिया, क्योंकि इनको तो एक्टर की ज़रूरत ही नहीं है. इनकी पहली फिल्म फैंट्री में नॉन एक्टर्स थे. सैराट में 2 लीड लॉन्च किए जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी. झुंड में अपार्ट फ्रॉम मिस्टर बच्चन द एंटायर कास्ट हैज बीन जस्ट लाइक रैंक न्यू कमर्स. सो आई वाज लाइक नॉन एक्टर्स वर्क सो वेल इन हिज मूवीज दैट आई फाउंड आई थॉट आई विल बी एक्सपोज्ड कि मेरी एक्टिंग पकड़ी जाएगी. तो आई हैड टू अनलर्न अ लॉट टू जस्ट work with this gentleman here. He's one of the finest we have. And I can't wait to kind of do more with him. Sir, tic-tac kiya to wapas. Thank you for your question. The mic is going Hello. around. Hi, Kritika. Jaya this side. Would you be able to stand up? Firstly, congratulations for your new chapter. So your character brings, different kind of energy into the world of Matka King. So really want to ask, how was it to you work in that space, and how do you like it to explore that character? Like I was saying before, कि ये जो power और लोगों का रिश्ता है ना वो बहुत amazing होता है. And I have had the opportunity to be close to power in another project with Prime Video before. This was very interesting because यहाँ पे जो है उसकी journey और उसकी ambition अलग है उससे and मेरे पिछले character से. तो I thought this was a new study in that, and it's really exciting. The entire show is, of course, it's thrilling क्योंकि जब पैसों की बात आती है तो सब कुछ thrilling हो ही जाता है. And then to see Brij Bhatti's world from this lens is also I think essential to this story and the Bombay of 60s and 70s. नागराज जी, मेरा सवाल आपसे है. भावना शर्मा, नव भारत. Would you be able to stand, ma'am? There she is, Yeah. right here. हाँ. Thank you. नागराज जी, जो हमारे एक्स कमिश्नर हैं राकेश मारिया जी, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि जो हमारी मुंबई पुलिस है, जो जिनको बेस्ट माना जाता है, वर्ल्ड में सेकंड बेस्ट माना जाता है, उसके लिए उन्होंने कहा था कि एक तरफ जहाँ पर रतन खत्री था तो दूसरी तरफ एक्स पुलिस कमिश्नर रिबेलो जी भी थे. तो आप क्या, जैसे ये जो फिल्म है वो मटका किंग पर है, लेकिन पुलिस भी उस समय बहुत स्ट्रांग थी और उनका सम्मान पुलिस महकमे में बहुत ज़्यादा है. तो क्या हम अपने पुलिस कमिश्नर को इसमें कमज़ोर देखेंगे या वो भी उतने ही दमदार होंगे जितना मटका किंग था? देखिए, किसी भी कहानी में कोई कमज़ोर और बहुत शक्तिशाली होता नहीं है. कहानी किसके नज़रिए से आप कहते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है. आप किसी एक बंदे की कहानी कहते हो तो दूसरा एज ए किरदार वीक ही हो जाता है. तो आप किस दिशा में आपका सवाल है वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये कहानी है एक मटका किंग की, तो इसमें यही पावरफुल है. और हम एक हीरो की कहानी देखते हैं, जब कृष्ण की कहानी देखते हैं तो कृष्ण की कहानी देखते हैं, जब हम सुदामा की कहानी देखते हैं तो सुदामा की कहानी देखते हैं. और सुदामा की कहानी में कृष्ण साइड कैरेक्टर होते हैं. अगर सुदामा जो कृष्ण के मित्र थे,
महाभारत में। तो जो किरदार है वो ही हीरो होता है, बाकी लोग आते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहानी देखते नहीं। तो यहाँ पे मटका किंग ही हमारे हीरो हैं और वही शक्तिशाली है, और दूसरे ये एक बंदे हैं जो शक्तिशाली हैं। धन्यवाद, आपने सबके सामने मुझे मटका किंग कहा। मुझे नजर आया शक्ति का संचलन इधर। मैम आपका सवाल बहुत बढ़िया था, लेकिन यहाँ जो हुआ वो तो और भी बढ़िया है. Thank you so much. Thank you for your question, and what an honor to actually be speaking to the commissioner at that point. Salute to your journalism and your career. Thank you so much for that. We're going to take this to the next person who's got a mic. Hi. Hi Vijay sir, Harshita this side from Bollywood Bubble. Hi. Sir, Matka King की जो कहानी है, it's being outsider coming, making his own journey, quite similar to your personal journey on this industry. So how do you relate to this character? I think I touched upon that point in the previous one, but Yeah. apart from just a man who had nothing but a dream and a desire to grow bigger and do it in his way, with his conviction, with his honesty, and with his dedication, and to keep people together and carry an element of imandari. I think these are the commons, but baki kuch nahi hai. Okay. Thank you, sir. A round of applause for this amazing show already. Yeah, मजेदार. Nikhil, I want to start with you. I want to say, अब लोगों ने देख लिया. पिछली बार जब हमने बात किया था, you were giving us hints, but now we've seen this world. Now, can you tell us a little bit more? What made you say yes to Matka King? So, typically, and even in this case, of course, the story was extremely important to us. But I want to give you a different and honest answer. Thank you. Which is that in this particular case, it was actually the makers involved with Matka King which drew us to this story. Both Saira and I have been looking to collaborate with Siddharth and Roy Kapoor Films for a long time, and we finally managed to do this with Matka King. We're, of course, fantastic fans of Mr. Nagaraj Manjule. His work is so inspiring. And when I first heard the story from Abhay, about 2.5 years ago, it was that moment where you hear something and say, this is special, and we really want to go after this. So, of course, the story is amazing. It's such a beautifully told story, but I think the 3 people involved that I mentioned were the real reason why we said we want to say yes to the story. I'm so glad you said yes, and I'm so glad for these 3. In fact, I'm going to be one of them right away. Siddharth Roy Kapoor, thank you so much for bringing us such a refreshing looking show, if I may say that. I would say it's kind of fighting to be my favorite era. I thought it was the 70s, but the 60s now, because of this show, might seem to be winning. I want to ask you what excited you most about this partnership, and what are you most happy about? What part of this coming to life gave you life? So, Roni, quite a few things actually. Like Nikhil said, there isn't just one thing. I mean, firstly, the world of Matka, the fact that this was something that in the 60s and the 70s people would put their money into with the expectation that that money would come back in a time when the country was going through so many financial difficulties. Here was something that they could actually rely on. The delicious characters, in the show. The fact that I was getting to work with Nagaraj. He's someone that I've admired for a very, very long time. After I saw Sairat, I had decided that I have to work with him on something. And like Nikhil said, the fact that Amazon and us have been meaning to work for a long time, and then this was just the best project to work on together. I just want to say a special shout out to the Amazon team, Nikhil, of course, Saira, who's been a rock behind this entire project and been, with us and sort of creatively collaborated with us all the way. Stuti, who's been a great partner on the production side, and their entire team. Abhay is someone that I've worked with on Rocket Boys before this, and having him write this show was a tremendous thing because he's a super talented writer and a creative collaborator. And my team at Roy Kapoor Films, Jinesh, Bharti, and the entire team that's worked so hard on it. So I just want to say that it's been a wonderful few years. Putting the project together, literally blood, sweat, and tears. And I'm so glad that we're all here today. Well, thank you so much for those acknowledgements, because they mean a lot. Look at the smiles on those faces. It's almost like, today the baby's out and they're going to see the world. Well, the release date will be that day, but today feels special as well, right, girls? I'm going to take my attention to
नागराज सर, आई जस्ट वांट टू से कि बहुत बड़ा फैन मोमेंट चल रहा है मेरा इस वक्त. मैं बैठी कैसे हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सिनेमा दैट यू गिवन अस. एंड कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स हु लव द मूवीज टू गिव राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस्टर नागराज पोपटराव मंजुली. 60s का बम्बई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. आई वांट टू आस्क यू, what were the elements that you knew you had to get right from the start? नमस्ते. देखिए, ये जो कहानी है, ये कहानी का समय वो है, और मुझे लगता है कोई भी किरदार अपने समय का अपत्य होता है और समय की देन होता है. और जब हम कोई किरदार लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो समय बहुत उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, और उस समय सारे चीज़ों को शेप देता है. तो वो कोई मुश्किल काम है नहीं कि आपने कैसे 60s का वर्ल्ड किया. ये अपनी देन है. और मेरी सारी जो टीम है, प्रोडक्शन डिज़ाइन से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, मेकअप से लेके, सारे लोगों ने, एक्टर, राइटर, सारे लोगों ने वो ये दुनिया बनाई है. तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सोचना था और जिस किरदार के बारे में आपको बोलना था वो ज़रूरी था. एक बार वो हो गया तो अपने आप ये दुनिया उसके इर्द गिर्द बनते गई. क्या बात है. थैंक यू सो मच नागराज जी फॉर दैट. अब भाई, आई एम गोना टेक दिस टू यू. ब्रिज भट्टी जो है ये कहानी के मुख्य किरदार तो हैं ही, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट जब आप इनकी कहानी लिख रहे हैं? यू नो व्हाट इज द थिंग दैट यू थिंक मेक्स हिम अ कंपेलिंग कैरेक्टर, ताकि आप इतना वक्त उनके साथ भी बिताए ना. I think what makes Brij Bhatti compelling is he is a man of the time. तो हमारी कहानी 60s और 70s में based है. Like Sid said, this was the period when the dreams and hopes of Nehruvianism was kind of fading away. और आदमी को सिस्टम के लिए बहुत, मतलब सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे ऐसे फील हो रहा था. तो उस दौरान एक ये कैरेक्टर इमर्ज होता है. एंड लाइक विजय mentioned earlier that he's taking on the system, पर बहुत ईमानदारी से करता है. तो वो जो मटका चला रहा है वो इलीगल है, बट उसका एक उसूल है, उसका एक मोरालिटी है जो सोसाइटल मोरालिटी से अलहदा है. But he has his own morality and he's very proud of it and he makes an entire world out of it. So that was super compelling to me. Well, thank you so much for sharing. Vijay, I think this is a nice, passover. You just said that Vijay's character, the reason why. So ब्रिज भट्टी की ही बात करेंगे आपसे. ये जो आदमी है वो अपनी जगह पहचानता है और फिर कहता है कि मैं अपने से कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ, बड़ा बनाने वाला हूँ. I don't know what I can ask you without asking for a spoiler, लेकिन tell us a little bit more about ब्रिज भट्टी without giving us a spoiler. So ब्रिज भट्टी पार्टीशन के दौरान सिंध से बॉम्बे आया 7-8 साल की उम्र में, और उसके साथ एक छोटा भाई था, उससे 3-4 साल छोटा. और आके यहाँ पर सड़कों पे जीना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी जीवन को, अपनी खाना ढूंढना, काम ढूंढना, यहाँ काम करना, वहाँ काम करना. शो में हम जब ब्रिज से मिलेंगे तब वो ऑलरेडी शादी कर चुका है, बीवी पेट से है, घर है उसके पास ठीक ठाक है, एक मैनेजर की जॉब है, लेकिन सपने देखना अलाउड नहीं है उसको. मिडिल क्लास आदमी की मोरालिटी अलग होती है, अमीर आदमी की मोरालिटी अलग होती है, गरीब आदमी की मोरालिटी अलग होती है. ही वॉन्ट्स टू क्वेश्चन दैट. ही वॉन्ट्स टू से कि अगर बड़ा आदमी सपना दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता है? अगर वो अपनी किस्मत के साथ खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेल सकता है? तो हिज एंटायर क्वेस्ट इज टू फाइंड आउट why he is not allowed to dream, and he wants to dream big, which is very similar to the life that I've led. That is true. There is something there that takes Brij Bhatti closer to Vijay Varma then. मैं एक सूटकेस लेके 3 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी जूते और एक पेटी भर के किताबें लेके बॉम्बे आया था. So I feel like that was the connection that I found with the character. Well, hats off to that. Thank you so much, Vijay, for sharing that with us. That is so beautiful. Kritika, Gulrukh जो है seems to be stepping into a world which is very different from the one she comes from. तो ये contrast मुझे तो बड़ा मजेदार लग रहा है. तुम्हें कितना मजेदार लगा? मुझे भी बहुत मजेदार लगता है ये. I think take that mic, yeah. Sorry, my bad. Hello. मुझे भी बहुत मजेदार लगता है ये रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड पावर. बहुत फैसिनेटिंग होता है. और गुलरुख जिस दुनिया से आती है उसके पास वो सब चीज़ें जो हमें लगता है हमें पावरफुल बनाती हैं. पैसे, प्रिविलेज, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आती है, बट फिर भी शी डज नॉट
she feels powerless, and that's what's interesting. और कैसे उसे मीनिंग, पर्पस और जो उसकी जर्नी है इस शो में वो पावरफुल फील करवाती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. एंड अनलाइक विजय, आई एम नॉट एट ऑल लाइक दिस कैरेक्टर. आई कैन नॉट, you know, I didn't, my upbringing and Gulrukh's upbringing have nothing in common. So it was also interesting to step into somebody who comes from privilege and is looking for power to be liberated. How interesting, how interesting. I can't wait to actually see that in the show. Okay, I think some hard relate might happen. Thank you so much for that. Did I just say I come from privilege? We all do, a little bit. We've got our own privileges. Sahi, I'm going to take this to you. I loved what you said when you stepped out of that box. And it gave me so much insight into your character that you're not just his wife. There's something more. There's something more that you are exploring while this world is unfolding around you. मतलब बता तो नहीं सकती, लेकिन बता दो दीदी, थोड़ा सा तो अपना आर्क हमारे साथ शेयर कर ही लो. मुझे लगता है बरखा धमाकेदार है. I like women with strong voices. और बरखा has a very strong voice. I like women with spine as well. मुझे लगता है बरखा का भी spine है. और मुझे वो औरतें पसंद हैं जो खुद के लिए कुछ करना चाहती है. और बरखा is somebody who wants to do something, who wants to be independent खुद के लिए. तो ये लड़की मुझे बहुत ही धमाकेदार लगी. और शुरुआत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके साथ मैं रिलेट कर पाऊँ, लेकिन towards the end, I think बरखा का और सई का full संगम हो गया, and they just, you know, they flowed. Merged. Yeah, they flowed. Yeah. Well, thank you for that. Gulshan Grover, this is the moment I've been waiting for. Yes, my dear. There are just too many characters that are immortal with your presence. And here you are making another attempt to give us another character. लालजी भाई, मुझे लग रहा है कि अब हमारे जहन से निकलने नहीं वाले हैं. मुझे आपसे पूछना है, what did you enjoy the most? Because as long as Gulshan Grover is having a great time, the audience is having an even better time. What was it like for you? मैं शुरुआत में तो ये कहना चाहता हूँ कि OTT जब से भारत देश में आया है, मैंने सिर्फ 2 OTT में काम किया है. लास्ट OTT डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज. मैंने अपना मन बना लिया था कि अच्छा खासा ब्रांड बना लिया है, लोगों का इतना ढेरों प्यार, रिकग्निशन सब मुझे मिल रहा है लगातार. अब मैं वो काम करूँगा जो मुझे फैसिनेट करेगा, जिसमें कोई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो मुझे ड्रॉ करेंगे एज एन एक्टर. बिल्कुल. जब मैंने मटका किंग के रोल और प्रमाइस को सुना, जिसका आइडिया थोड़ा सा मुझे क्या कहते हैं कि दिया गया, डायरेक्टर के बारे में सुना. डायरेक्टर के बारे में पहले से ही सुना हुआ था. प्रोड्यूसर इसमें सिद्धार्थ राय हैं, अश्विनी जी हैं और दूसरे भी प्रोड्यूसर्स हैं, अमेज़ॉन भी प्रोड्यूसर हैं. ये सारे एलिमेंट्स को सुना. It is an extremely interesting coming together of people that I look up to for their talent. तो ये एक पॉजिटिव स्टार्ट हो गया था. फिर जब मैं नागराज जी को मिला, उससे पहले अक्सर मैं मीडिया वाले मेरे दोस्तों को कहता हूँ, सुनता मैं किसी की नहीं, मानता मैं किसी की नहीं. करेक्ट है भाई? हर फंक्शन में बोलता हूँ, बोलता इधर खड़े हो नागराज, सुनता मैं किसी की नहीं, मानता मैं किसी की नहीं. पहली बार मुझे इतना फैसिनेटिंग डायरेक्टर मिला. आप पूछिए पूरे शो के दौरान आई जस्ट लिसन टू हिम, बिकॉज आप यकीन मानिए जब आप मटका किंग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, तो आपको यकीन आएगा. आपके टाइप का है नहीं है वो एक अलग बात है, पर आपको यकीन आएगा कि किस प्रकार से इस डायरेक्टर ने एक बहुत खूबसूरत वेब सीरीज क्रिएट की है with the tremendous participation of Amazon and the wonderful producers, writers, जिन्होंने सोचा है, showrunners and everybody. But मैंने इतना ज़्यादा ध्यान से नागराज जी को सुना
यहाँ तक के आई डोंट नो इफ आई कैन शेयर दिस, बट एक दिन मुझे लगा यार ये मुझे सेम कपड़े क्यों पहना रहे हैं, ऐसे ही कपड़े पहना रहे हैं यार, क्या है? एंड आई सॉ देयर वाज अ बिग सीन in a government office. I go and I had a logic that I would get dressed in my best. तो मैंने जो मुझे कॉस्ट्यूम दे रहे थे उनको कन्विंस किया, कुछ अलग तरह के कपड़े पहन कर आ गया जिसमें मैं अल पचीनो लग रहा था। कोई शक, कोई डाउट। तो आया, नागराज जी ने कहा कि ये पहनना चाहते हो आप? मैं बोला हाँ, मैं एक सरकार के ऑफिस में आया हूँ, बड़ा आदमी हूँ, पैसे वाला हूँ और असली मटका किंग हूँ, तो क्यों नहीं? तो कुछ मुझे लगा कि समथिंग डिडंट गो राइट विद हिम। सर आपको जो पहनना पहने, मेरा मन था आप वही पहने। आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं सेट से गया भी नहीं, मैंने वहीं सबके सामने, पूरी यूनिट के सामने कपड़े चेंज किए, पुराने कपड़े पहने। इतना सम्मान है इनकी क्रिएटिविटी के बारे में मुझे। और जो आप कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, 17 अप्रैल को मटका किंग रिलीज होने वाली है। 17 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि द सिंसियरिटी ऑफ द डायरेक्टर, द सिंसियरिटी of the producers, the writers, everybody, Amazon being open-hearted in making it happen, everything making it happen. And, you know, some of the most wonderful talent that India has is part of this film. पर आप देखेंगे कि सबकी sincerity translate करेगी जब आप 17th को मटका किंग Amazon पर देखेंगे, तब पता चलेगा असली मटका किंग मैं हूँ। जोर से बोलो जल्दी से। Give it up for Gulshan Grover, guys. सिद्धार्थ जाधव, दगड़ू और ब्रिज, ये दोनों के बीच में जो ब्रिज है ना, इस पे नाचने का मन कर रहा है। आप इनके इस जर्नी में अपने रोल को कैसे देखते हैं? नमस्कार। ये सिर्फ ब्रिज की जर्नी नहीं है, ये ब्रिज के साथ साथ वो दगड़ू की भी जर्नी है। और मैं ऐसे बोलूँगा कि ब्रिज की जो जर्नी है वो ब्रिज से ज़्यादा दगड़ू ने बहुत देखी है। क्या बात है? जो दगड़ू बैठा है, वो ब्रिज चल रहा है, रुक रहा है, थक रहा है, झगड़ रहा है अपने आप से, वो दगड़ू देख रहा है। तो ये जो कनेक्शन है ये ब्रिज और दगड़ू के कैरेक्टर का, ये बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने वन ऑफ द बेस्ट एक्टर और वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर के साथ काम किया, जिनका नाम विजय वर्मा है। बहुत अच्छा बंदा है, अपने काम को लेके इतना सीधा है और अपने सह कलाकार को लेके इतना अच्छा है कि वो बढ़ावा देता है। और दगड़ू जो निखर के आया है ये सीरीज में, इसमें वो ब्रिज का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जर्नी वो दगड़ू ब्रिज के साथ देखी है और बहुत अच्छा लग रहा है इस जर्नी के उनके साथ सफ़र करके। लेकिन ब्रिज ऐसा बंदा है, ये डायलॉग नागराज सर ने लिखा है, लेकिन ये मैं अभय सर को, अमेज़ॉन को, सिद्धार्थ सर को और स्पेशली नागराज सर को भी बोलता हूँ। जब ब्रिज दगड़ू को एक काम देता है और दगड़ू उनको बोलता है कि शुक्रिया सेठ, काम देने के लिए नहीं, भरोसा रखने के लिए। मुझे लगता है एज ए एक्टर इन्होंने मुझ पे भरोसा रखा है, वो कुछ अच्छा करने की कोशिश मैं मटका किंग में कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और सेट तो है ही अच्छा, तो आप देखेंगे अच्छा लग रहा है। ये इतने महारथी कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और स्पेशली अश्विनी मैम, सिद्धार्थ सर, जिस तरीके से सपोर्ट करते थे एक्टर को। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट वेब सीरीज़ है, ये मैं पहली बार वेब सीरीज़ में काम कर रहा हूँ। लेकिन जो माहौल है, एक्टर को कंफर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। अभय सर ने बहुत सपोर्ट किया था। और नागराज सर के साथ काम करने का, मराठी इंडस्ट्री से हूँ, मराठी थिएटर से हूँ, लेकिन सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। और वो सर ने जो सिक्सर मारने को दिया है, वो मटका किंग ही दिया है। तो मेरी तो लॉटरी लगी है। बिल्कुल मटका ही लग गया, यही कहेंगे सिद्धार्थ जी। That was so beautiful. A round of applause, please. Thank you. भूपेंद्र, I love you sir. सेठ अभी है। ये आई लव यू वाला मोमेंट एक और बार कर लेंगे, मैंने बिगाड़ दिया, प्लीज। आई लव यू दगड़ू। I love you सेठ। अच्छे लोग आपस में लव कर रहे हैं। भूपेंद्र, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई वाज टू कम टू यू। मुझे बताइए, लक्ष्मण जो है ये अपने बड़े भैया के साए से दूर जाना चाहते हैं और खुद के लिए नाम बनाना चाहते हैं। ये ट्रेलर देखकर मैं सोच रही हूँ, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो
What can you tell us? बात स्टार्ट यहीं से होती है कि है ना? वो आई थिंक हम सभी लोग ज़िंदगी में कहीं ना कहीं की शेडो से बाहर निकल के अपना मुकाम बनाना चाहते हैं और ये आइडिया बहुत बहुत रिलेटेबल है ऑडियंस के लिए टू सी लक्ष्मण और उसके बाद उसकी अपनी जर्नी है, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, उसकी अपनी वल्नरेबिलिटी है, उसका अपना एंग्स्ट है जिसके अंदर वो अपना एक स्पेस ढूंढ रहा है अपने भाई की आंखों में और उसी के बीच में आप उस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे जैसे मैंने किया। मैं खुद बहुत उत्साहित हूँ अपने आप को देखने के लिए और बहुत खुश हूँ टू वर्क विद सच ग्रेट पीपल अराउंड मी। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू सिट हियर। थैंक आपके यू। बड़े भाई जो अपने आप को ही देखना है बस, सबको नहीं देखना है। सबको सबको विजय वर्मा को सबसे पहले, ये जो सिद्धार्थ यादव को उसके बाद, गुलशन सर को, सही तमनकर अपने आप को देखने के लिए बहुत उत्साहित है तो छोड़ दो उसको। जैमी को, सभी को। लव इट। ये जो रिश्ता है ऑफ स्क्रीन भी बड़े छोटे का ही लग रहा है। दिस इज क्वाइट कूल। थैंक यू सो मच। एज यू नो मेरे सवाल जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, अब आपकी बारी है। You know the jig, guys. It's pretty simple. I will be asking you to. There'll be a mic that'll come to you if you raise your hand. And हमारे जितने भी किरदार हैं. And right here, yes, hi. खड़े हो जाओगे तो अच्छा Sure, लगेगा। of course, yes. Hi. Hi everyone, Kunal here from India Forums. First of all, what a banger of a trailer. So just congratulations on this. Thank you so much. Absolutely. And I especially want to thank whoever is in the music department for giving the kind of soundtrack titled, theme tune. Oh my God, it's probably going to go to the playlist right away. Title track is one of the strongest we have, and Abhay will tell you. Ajay Jayanti has composed it. Achint Thakkar and Parth has supervised the track, and they've collaborated on this. It's a banger, and it's got Nashik Dhol along with jazz elements. It's killer. Oof. We have just time enough for one last question, and that the mic is already रवि जी के साथ है, तो रवि जी बोलिए ना, लेकिन आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आपके पीछे कैमरा है। रवि जी बोलिए। बिल्कुल। मेरा सवाल नागराज जी से है, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी सारी फिल्में मैं देखता हूँ, चाहे फैंड्री हो, सायराट हो, पिस्टुलिया जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म, शॉर्ट फिल्म थी आपकी। आप एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिसे एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग फिल्म मेकर कहा जा सकता है, जिसका विजन बहुत ओरिजिनल होता है और जो हमेशा से सोशली कॉन्शियस सिनेमा पर बहुत ध्यान देता रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि वो एक क्या बात थी कि आपने 60s के दौर में जाना पसंद किया, रतन खत्री जैसे जो एक जिस तरह का शख्सियत था उस पर ये एक सीरीज़ बनाने के बारे में सोचा, और किस तरह से आपने अपनी ओरिजिनल वॉइस को रखा है इसमें जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो। पहली बात ये किसी पे आधारित है नहीं सीधे, और 60s में जाना या किसी भी समय में जाना, खाशावा उसके पहले की कहानी है। मैं जो खाशावा मराठी में कर रहा हूँ तो ये लगभग 30 की कहानी है, 30 से लेके 80 तक की। तो वो तो मैंने पहले भी कहा था कि जब जो किरदार जिस समय का है उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है, और मैं ये माध्यम पहली बार कर रहा हूँ, मुझे भी करके देखना था। मैं सीख रहा हूँ और ये सारे लोगों के साथ मैं ये माध्यम में सीखा। मुझे कितना अच्छा आता है नहीं आता है आप देख के बताइएगा मुझे लेकिन फिल्में बनाना अच्छा लगता है और वो तो मैं बना ही रहा हूँ, और मैं अपनी तबीयत से जो पसंद आता है वो बनाता हूँ। और अश्विनी जी जो मेरे दोस्त हैं, ये बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे कि मुझे फिल्म तो तू कर ही रहा है लेकिन कभी वेब सीरीज़ भी करके देखना चाहिए। आशीष जो है, आशीष आर्यन, ये बहुत सालों से, लगभग 6 साल हो गए मैं आशीष को जानता हूँ, मैं दोस्त हूँ, और ये कहानी वो बार बार मुझे कह रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और देखिए कि मैं सोशल सब कुछ होता है, मैं ये भी मानता हूँ, हालांकि मेरा चॉइस मैं रखता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ सोशल है। और जब ये दुनिया के बारे में मुझे पता चला मटका और ये सब, तो मैं भी बचपन से मटका को देखते आया हूँ, मैं भी बचपन में मटका खेला हूँ, और तब मैं मटका की जो कहते हैं एंड यूज़र था, उसकी अंदरूनी दुनिया में समझता नहीं था। और जब मैं आशीष से समझने लगा, फिर बाद में मैं खुद जाके बहुत लोगों से मिला, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि ऐसी भी एक कहानी कह के देखनी चाहिए एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, एक अलग कहानी, हालांकि जो मैं आमतौर पे शायद मैं नहीं करता था
वैसी कहानी मुझे भी बोल के देखनी चाहिए। एक अलग माध्यम है, एक बड़ा माध्यम है सीरीज़ का, और ये सारे लोगों के अमेज़ॉन, रॉय कपूर फिल्म्स के सारे लोग, अभय, आशीष, इन सब के साथ, अश्विनी के साथ मैं ये बनाया, और विजय ने और ये सारे लोगों ने उसको मेरी मदद की। गुलशन जी खास मैं तो बचपन से इनको देखते आया हूँ, नहीं सही बोल रहा हूँ मैं। मेरा जब मैंने गुलशन जी को इसी अमेज़ॉन की पार्टी में देखा था, अपना जब अनाउंसमेंट हुआ था तब कास्टिंग नहीं हुआ था, और सायरा जी हम सब लोग तब कास्टिंग के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो सर मेरे सामने से गुजर गए, तो मुझे लगा यार गुलशन जी, तो मुझे मिलना था, लेकिन अश्विनी जी उनको जानती हैं, तो मैंने अश्विनी जी को कहा, अश्विनी जी बोला सर को पूछ सकते हैं, मैंने पूछते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा कि जिनको बचपन से देखते आया हूँ, जो अपने मन को भाता है वही करते हैं, और उन्होंने हमारे साथ भी ये काम किया, और सारे लोग, मैं सही हो, सिद्धार्थ हो, भूपेंद्र हो, कृतिका, सारे लोगों के साथ, और थैंक यू कि एक नया माध्यम निखिल और सायरा और सारी स्मृति जी, सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक नया माध्यम मुझे सीखने को मिला और करने को मिला। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं 2 लाइनें ऐड करना चाहता हूँ। 2 लाइनें, मैंने थॉट ऑफ 2 लाइन्स, बट जस्ट वांट टू ऐड टू दिस। यू नो, मटका किंग is a story, as I said lightly when he was showing different cards. It has every kind of card. It has every kind of feeling. When you watch Matka King, it's entertaining as well. There's crime, there's danger. इतना आसान नहीं है मटका किंग या कोई भी किंग बन जाना है, किसी भी फील्ड में राइज कर जाना. There are people who kill you. And also, there's family emotion. There's, conflict in your own mind. कि मैं क्या करने आया था, क्या कर रहा हूं मैं. There are various wonderful elements that would entertain you, that would get you thinking, and it's set in a very interesting world. Interesting word इतना fascinating है. मैं आपको 3-4 पिछले दिनों की कहानी बात बताता हूँ. मैं ओए बोल नहीं बे, ताली बजाना सिर्फ. तो विनोद, तेरी हिम्मत. तो मैं परसों आई डिनर विद शत्रुघ्न सिन्हा जी, राकेश रोशन जी एंड शशि रंजन, अन्नू रंजन जो ITA की वो हैं. तो अक्सर जब कोई टैलेंट मिलता है, यार दोस्त से ही पूछते हैं कि क्या कर रहे भाई नया. तो मैंने कहा कि 17 अप्रैल को अमेज़ॉन पे मटका किंग आ रही है. सबकी अटेंशन इस टाइटल पे थी, उस वर्ड पे थी. अगला सवाल था कि डायरेक्टर कौन है. मैंने कहा नागराज मंजुले. मैंने इनकी फिल्म का नाम बताया शरारत, ऐसा कुछ करके. तो अन्नू रंजन ने कहा शरारत नहीं, शहरियात एंड शहरात. तो सभी इनके बारे में इतनी अच्छी तरह से जानते थे. प्रोड्यूसर, मैं दूसरे प्रोड्यूसर से माफ़ी मांगूंगा, मैंने कहा सिद्धार्थ राय कपूर. उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ऑलवेज मेक्स वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट. इस प्रकार का रिएक्शन उस टाइटल से आया मटका किंग से, जिसके अंदर जो मैंने कहा जो मेन मुद्दा था, वो मल्टीपल कलर्स वाली स्टोरी छुपी हुई है. ना सिर्फ ये गैम्बलिंग के ऊपर नहीं है. गैम्बलिंग तो एक ऐसा ही कलर है. यहीं इसी हॉल में यहाँ सामने मैं और अक्षय कुमार बैठे हुए थे. 3 दिन पहले की बात है, अवार्ड फंक्शन था. ऑब्वियसली अक्षय मेरा दोस्त है, भाई है. पूरा क्या नया? मैंने बोला यार वो अमेज़ॉन की सीरीज आ रही है मटका किंग. There was curiosity, this conversation. I had the similar conversation with Shahrukh, I had similar conversation with Varun Dhawan and various others. The title takes you to a very fascinating world. आपके सामने वो 60s का wonderful world सामने आ जाता है. और उस world को अगर खूबसूरती से, with multiple emotions and entertainment and everything, and danger and fight and all that, if you present it correctly, that is what I would say is the tremendous strength of this film. Thank you very much.